اردو سے آپ کا میزبان ڈاکٹر فرقان حمید حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم آپ کو انت قبر مزار اتاتürk پر لیے چلتے ہیں تاکہ آپ کو بتا سکیں کہ ترکی کے دارالحکومت میں اتاتürk کے مزار پر میں کیا کچھ ہے، کب اتاتürk کو یہاں پہ دفن کیا گیا۔ اتاتürk کے بارے میں اس مزار جو ہے آپ نے دیکھ رہے ہوں گے، پیچھے مزار آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس وقت لوگوں کا رش لگا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں اس کے لیے آپ خراج تحسین پیش کرنے کے لیے۔ تقریباً ویکینڈ ہے، ویکینڈ پہ عام طور پر بڑا رش ہوتا ہے اور ہم بھی اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ کو مزار اتاتürk کے بارے میں معلومات فراہم کی جا سکے۔ جدید جمہوریہ ترکی کے بانی غازی مصطفیٰ کمال اتاتürk کا یہ مزار، جسے انت کبیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، 750,000 مربع میٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ غازی مصطفیٰ کمال اتاتürk نے 10 نومبر 1938 میں استنبول میں وفات پائی تھی اور وہاں پر ہی ان کی نماز جنازہ بڑی سادگی سے ادا کر دی گئی تھی، جبکہ بعد میں 21 نومبر 1938 کو ان کی نعش کو انقرہ کے ایتھنوگرافی میوزیم کی عارضی قبر میں دفن کر دیا گیا اور ان کی یہ نعش 15 سال تک یہاں ہی مدفون رہی۔ 1 مارچ 1941 کو کمیشن نے مزار اتاتürk کی جگہ کا انتخاب کیا اور اس پر مقبرہ یا مزار تعمیر کرنے کے لیے بین الاقوامی مقابلہ منعقد کروایا گیا، جس میں ترکی، جرمنی، اٹلی، آسٹریا، سوئٹزرلینڈ، فرانس اور چیکوسلوواکیہ کے کل 47 پروجیکٹس نے حصہ لیا۔ یہ مقابلہ ترکی ہی کے آرکیٹیکٹ پروفیسر ڈاکٹر امین اون اور ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر اورہان آردہ نے جیت لیا اور اس مزار کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز 1944 میں ہوا۔ اس عمارت کو 1953 میں یعنی 9 سال کے عرصے میں مکمل کیا گیا۔ اتاتürk نے اپنی زندگی ہی میں اس پہاڑی چوٹی کو اپنی آخری آرام دہ کے طور پر منتخب کیا تھا۔ مزار اتاتürk انقرہ کی پہاڑی چوٹی پر واقع ہونے کی وجہ سے یہ دور دور سے دکھائی دیتا ہے۔ خواتین و حضرات، مزار اتاتürk کے انٹرنس پر راہداری کے بالکل آغاز پر آپ نے یہ 3 اسٹیچو دیکھ رہے ہوں گے۔ ایک جو ہے ٹیچر کی نمائندگی کر رہا ہے، ایک جو ہے وہ چراغے کی کر رہا ہے یا کسان کی کر رہا ہے، اور ایک جو ہے فوجی کی کر رہا ہے، کیونکہ یہ تینوں نے مل کر آپس میں ہاتھ ڈال کر ترکی کی آزادی میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ اور دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ خواتین کا ہے، خواتین کو ترکی کی اس میں مکمل جو ہے اختیارات، مساوی اختیارات حاصل تھے۔ یہ تینوں خواتین جو ہے یہ خواتین کی نمائندگی کر رہی ہیں کہ مردوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خواتین کو بھی اسی طرح حقوق کا حاصل ہے جیسے کہ مردوں کو حاصل ہے۔ خواتین جو نرس ہیں، خواتین جو ٹیچر ہیں، خواتین جو ہے ترکی کی اس میں ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ یہ بالکل انٹرنس میں جو ہے راہداری کے انٹرنس پہ وہاں پر یہ تینوں اسٹیچو جو ہے ایک رائٹ سائڈ پہ اور لیفٹ سائڈ پہ لگائے گئے ہیں۔ ہم یہاں پر اس وقت جو ہے اتاتürk کے میسولیم کے گیٹ کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور یہ یہاں پر جو ہے دیکھیں کہ اس کے اندر جو ہے نا کوئی جو ہے مجسمے نظر آ رہے ہیں کہ شیروں کے مجسمے ہیں۔ تو فرقان صاحب سے اگر میں پوچھوں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو یہ مجسمے جو ہے یہ کیا ڈینوٹ کرتے ہیں؟ یہ شیروں والی شاہراہ کہلاتی ہے، ارسلان یولو ترکی زبان میں کہتے ہیں۔ یہ شیر جو ہے 24 شیر لگے ہوئے ہیں۔ 24 شیر جو ہے یہ ترکیوں کا جو اوز قبیلہ، جو آپ نے دیکھا ہوگا ڈرامہ ارطغرل غازی دیکھا ہوگا، وہاں پہ اوز قبیلے کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی ہے۔ یہ 24 قبائل تھے اور 24 قبائلوں کی جو ہے وہ شیر جو ہے اس کی وہ کر رہے ہیں، تمثیل کر رہے ہیں، اس کی جو ہے نمائندگی کر رہے ہیں۔ جی ہاں، شیر جو ہے یہ جتنے بھی اب وہ پروٹوکول وغیرہ ہوتے ہیں، پریزیڈنٹ آتے ہیں، پرائم منسٹر آتے ہیں، وہ سارے اسی شیروں والی شاہراہ سے ہو کے مین روڈ پہ جو ہے مین جو ہے اتاتürk کا مزار ہے وہاں پہ جاتے ہیں۔ انٹرنس وہاں سے ہوتی ہے اور پروٹوکول والے یہیں پہ چلتے ہوئے۔ اور آپ نے یہ چیز نوٹ کی ہوگی جو میں اپنے سامعین کو، ناظرین کو بتاتا چلا جاؤں، آپ جب شاہراہ پہ پروٹوکول ہوتا ہے، جب شاہراہ پہ بڑی بڑی ہستیاں آتی ہیں، پریزیڈنٹ آتے ہیں، پرائم منسٹر آتے ہیں، تو اسی شاہراہ پر چلتے ہیں۔ اور اس شاہراہ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پتھر آپ نے لگے ہوئے، سنگ مرمر ہے، یہ لگے ہوئے ہیں، یہ لگے ہوئے اس لیے لگا، اس میں گیپ ہے، گیپ اس لیے کہ آپ کو دھیان سے چلنا پڑتا ہے، آپ کو نیچے نظریں رکھنی پڑتی ہے احترام، تاکہ اوپر نہ دیکھیں آپ، نیچے احترام جو ہے اتاتürk کا جو ہے احترام کیا جائے اور آپ کو پتہ چل جائے یہ احتراماً ہستی ہے، تو آپ اسی لیے جو ہے پروٹوکول والے اس کو نیچے جو ہے اپنا خیال کرتے ہوئے قدم جو ہے
वो उठाते हुए चलते हैं, ख़ास तौर पर जो एड़ियाँ वगैरह होती है, इसलिए जो है गैप रखा हुआ, कोई एक पत्थर दूसरे पत्थर से नहीं मिलता, ताकि हम नीचे देखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता चलते चले जाएंगे। ये मैसोलियम जो है, ये जो हम देख रहे हैं, इसमें कई बिल्डिंग्स हैं, जी हाँ। बिल्डिंग हैं इसमें। ये एक बिल्डिंग तो होगी जिसमें अतातुर्क की कब्र होगी। हाँ जी, एक्चुअली ये 2 ब्लॉक हैं, इसमें मेन ब्लॉक जो है 2 है, ये पहला ब्लॉक है और मेन ब्लॉक जो है वो आगे है, और ये यहीं से जो आगे चलते जा रहे हैं, और आगे हम आपको बताएंगे अतातुर्क की जो मज़ार है, जो अनत कब्र है, जो कब्र है उनकी, वो वहाँ पर है मेन पे हॉल पे, जिसे ये कहते हैं। ख़वातीन व हज़रात, जमहूरियत तुर्की के बानी गाज़ी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क का मज़ार का मेन हिस्सा यहाँ पर वाक़ है। हम आपको वहाँ पर लिए चलेंगे, लेकिन आपको ये बता दूँ कि ये जो है ये मज़ार जो है मज़ार अतातुर्क, जिसे अनत कब्र के नाम से याद किया जाता है, ये 1944 में इसकी तामीर का आगाज़ हुआ था, जबकि 1941 में ये बेश अनत तेपे के नाम से पहाड़ी एरिया है, ये तकरीबन 20 मीटर जो है वो बुलंद है अंकारा शहर से, इसलिए अतातुर्क ने इस इलाके को खुद ही पसंद किया था और सबसे बेहतरीन इलाका इसको करार दिया था। और ये इलाका इसी वजह से जो है अनत कब्र का, अनत तेपे के नाम से ये इलाका जो है गाज़ी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की तरफ से मुंतखब किया गया था, और फिर उनकी वफ़ात के बाद 1941 में इस सरज़मीन का जो है मुंतखब किया गया, और 1944 में यहाँ पर अनत कब्र या मज़ार अतातुर्क की तामीर का आगाज़ किया गया, जो 1953 तक जारी रहा। और 1953 में अतातुर्क को, इससे पहले जो अंकारा के एथनोग्राफिया म्यूज़ियम है वहाँ पर मदफून किया गया था अबूरी अरसे के लिए, और फिर 1953 में यहाँ मुंतकिल किया गया, जब ये मज़ार जो कब्र जो है या अनत मज़ार जो है कंप्लीट हो गई, जब ये मुकम्मल हो गया, तो फिर एक बहुत बड़ी जो है तकरीब का अहतमाम किया गया, जनाजे की तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें दुनिया भर के लोगों ने, तुर्की के लोगों ने शिरकत की, और फिर उस वक्त से ये जहाँ पर ये मज़ार अतातुर्क के नाम से याद किया जाता है, उस वक्त से 1953 से यहाँ पे मज़ार अतातुर्क पर अतातुर्क मदफून है। ख़वातीन व हज़रात, ये लिखा हुआ हाकिम बला शर्त, यानी इक़्तिदार जो है वो आवाम के पास है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो है ये 42 के करीब सीढ़ियाँ जो है मौजूद हैं। वो सीढ़ियाँ इस वजह से है कि अतातुर्क ने 1923 में जब ये जमहूरियत तुर्की कायम किया, तो उस वक्त उनकी उम्र जो थी वो 42 साल की थी। ये 42 सीढ़ियाँ जो है वो उनकी उम्र की नुमाइंदगी कर रही हैं। ख़वातीन व हज़रात, आपको ये बता दूं कि ड्यूटी पर जो भी जो है फ़ौजी जो है, सिपाही जो है, अपनी जब ड्यूटी पर होता है 2 घंटे ड्यूटी पर मुसलसल यहाँ पर खड़ा रहता है, उसको किसी किस्म की हरकत करने की इजाज़त नहीं होती। आप देख रहे होंगे कि इस वक्त भी जो है बग़ैर किसी हिले जुले, बग़ैर किसी हरकत के यहाँ पर मौजूद है। गर्मी भी, धूप भी पड़ रही है, इसके बावजूद ये यहाँ पर खड़ा है, और 2 घंटे इसकी ड्यूटी है। ये 2 घंटे अपनी जो है ये सर्विस जो है यहाँ पर देगा, अपनी खिदमत सर अंजाम देगा, अपने फ़राइज़ सर अंजाम देगा, और 2 घंटे के बाद जो है वो दूसरे इसकी जगह जो है जो भी सिपाही या फौजी होगा वो इसकी जगह संभाल लेगा। ख़वातीन हज़रात, आपने देखा होगा कि छत पर जो है वो सुनहरी हरूफ से काम किया गया है, नक्शो नगारी की गई है। ये सारा जो है ये मेन हॉल है, मेन हॉल की छत पर जो है वो सुनहरी हरूफ से काम किया गया है और तुर्की की अपनी नक्शो नगारी की गई है। ख़वातीन हज़रात, अतातुर्क की मेन कब्र ये है। यहाँ पर जो भी प्रोटोकॉल वाले, जो भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर वगैरह आते हैं, यहाँ पर आपने देखा होगा कि फूलों का गुलदस्ता या फूलों की चादर यहाँ पर चढ़ाई जाती है, और अतातुर्क की जहाँ पे जो है नुमाइंदगी करती है ये कब्र जो है। असली कब्र जो है एक्चुअली इसके नीचे है, कमरा जो है वहाँ पर है। ये जो है एक तमसीली कब्र जो है ये बनाई गई है, ताकि जितने भी प्रोटोकॉल वाले हैं इस कब्र को जो है वो वहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर फूलों की चादर चढ़ा सकते हैं या फूलों का गुलदस्ता पेश कर सकते हैं। इस्लामी ममालिक में आम तौर पर ये गलत फहमी पाई जाती है कि मज़ार अतातुर्क को फातिहा पढ़ने की इजाज़त नहीं है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। हर एक यहाँ पर फातिहा पढ़ सकता है। ख़वातीन व हज़रात, अतातुर्क के बाद इक़्तिदार जो है वो तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनाब इसमें इन्होंने संभाला था। ये तुर्की के सदर रह चुके हैं। 1955 तक ये तुर्की के सदर यही थे, ऑल इन ऑल जिसे कह सकते हैं। अतातुर्क के बाद यही थे। एक्चुअली देखा जाए अतातुर्क ने सेकुलरिज़म की बुनियाद रखी थी, लेकिन अतातुर्क का सेकुलरिज़म जो था वो एक तरफा सेकुलरिज़म नहीं था। वो मजहबी लिहाज से वो कह रहे थे कि जमहूरियत हुकूमत जो है वो गैर जो है वो मज़हब नहीं होना चाहिए, आवाम जो है वो उसके हर एक को आज़ादी हासिल होनी चाहिए। जबकि इसमें इन्होंने एक तरफा तौर पर जमहूरियत रिपब्लिक
रिपब्लिकन पीपल पार्टी के सदर होने के नाते यहाँ पर जो है वो सेकुलरिज्म को यकतरफा तौर पर नाफिज कर दिया था, जिसकी वजह से तुर्की भर में इख्तलाफात पैदा हुए थे। सेकुलरिज्म के ख़िलाफ़ जो है तहरीकें उभरी। ये वजह यही थी कि इसमें इन्होंने ने जो है सेकुलरिज्म की बेबुनियाद और गलत जो है इसकी तर्जमा शुरू कर दिया था, इसकी तारीफ़ जो है वो गलत इसकी जो है तारीफ़ करनी शुरू कर दी थी। इसी वजह से तुर्क लोग जो है यही समझते हैं कि इसकी वजह से सारी प्रॉब्लम रिपब्लिकन पीपल पार्टी पर आई है वो इसमें इन्होंने ही की वजह से आई है, जबकि अतातुर्क का इसमें किसी किस्म का कोई रोल नहीं था। अतातुर्क जो है वो सेकुलरिज्म पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करने के ख्वाह थे, जिस तरह के मौजूदा सदर रजब तय्यिप एर्दोग़ान सेकुलरिज्म पर अमल दरामद कर रहे हैं। इसमें इन्होंने की खबर आपने देखा होगा कि मज़ार अतातुर्क के अंदर व हाल में वाक़या नहीं है, बल्कि जो सेन में अहाते में एक साइड पे जो है इसमें इन्होंने की खबर है। यहाँ पर मौजूद आप देख रहे होंगे, ये मेन अतातुर्क के मज़ार का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये बाहर जो है हयाते में इसमें इन्होंने की खबर जो है यहाँ पर इसमें इन्होंने मदफून है। ये अतातुर्क के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी रही है। तवील अरसा अतातुर्क इस गाड़ी के ज़रिए अपने सफ़र करते रहे, तुर्की के मुख्तलिफ़ इलाकों की सैर करते हैं, दौरा करते रहे। ये अतातुर्क ही के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी है, आप देख रहे होंगे। मज़ार अतातुर्क में ये म्यूज़ियम का हिस्सा है। यहाँ पर देख रहे हो चनाकले की जो वार है उनके जो है वहाँ पर कैसे किस तरह होती रही वार के सब डिटेल वगैरह म्यूज़ियम के अंदर ही दी गई है। आप देख रहे होंगे सब जो है किस तरह आग जल रही, किस तरह बम रखे गए, सारा कुछ है वो हकीकत की शक्ल में यहाँ पर पेश किया गया है। ख्वातीन व हज़रात, मज़ार अतातुर्क के नीचे जैसा कि आपको बता चुका हूँ म्यूज़ियम भी मौजूद है। म्यूज़ियम के एक हिस्से में जंग आज़ादी यानी जिसे ये इस्तिक़लाल जंग कहते हैं और चनाकले की जंग, वहाँ पर महाज पर जो कुछ भी होता रहा है, जो लड़ाई होती रही है, उसको हकीकी तौर पर पेश किया गया है। आपको ऐसे लगेगा जैसे इस जंग का खुद भी हिस्सा है। ख्वातीन व हज़रात, हमने मज़ार अतातुर्क पर हाज़िरी दी। आपको मज़ार अतातुर्क के बारे में जो मालूमात फराहम की है आपको कैसी लगी हैं? अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, और आप क्वेश्चन वगैरह पूछना चाहते हैं तो क्वेश्चन भी कीजिए और अपने कमेंट्स भी दीजिए, ताकि हमारा राब्ता आपसे कायम रहे और आइंदा हम अपने प्रोग्राम को किसी नए प्रोग्राम के साथ जारी रख सकें। शुक्रिया। TRUrdu.com।